Good morning, everyone. Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Yes, Mohit, you are audible. Thank you, ma'am. Okay, good morning, everyone. No matter how hard the past is, you can always begin again. Every day is a chance to begin again. Don't focus on the failures of yesterday. Start today with the positive thoughts and expectations. Forgiveness says you are given another chance to make a new beginning. So, good morning, everyone. My name is Mohit Kapil, and on the behalf of Satyug Darshan Institute of Engineering and Technology, I extend my warm welcome to all of you at Day 9 online orientation program, November 4th, 2020. I'm really feeling delighted to see you all here to enjoy the wonderful session. Now, I find immense pleasure in introducing a distinguished motivational speaker, Dr. Ashish Johri, Principal Consultant, Synergy HR. He's a versatile behavioral trainer for various types of corporate and academic training requirements. He is certified from various national and international level reputed training organizations. He has made his presence felt in the field of training with a gifted ability to connect with people and transforming their life from ordinary to extraordinary by helping them to choose their goals. He is driven by his passion for training and has a desire to serve as many people as possible in various fields. He trains extensively on personal excellence, authentic leadership, team building, emotional intelligence, NLP, and positive psychology, etc. SDIT welcomes you and feeling pleasure to have you here, sir. So before we get started, if you have any questions during the session, please type in the chat box in your Zoom control panel. I shall bring them up at the Q&A session. Over to you, Ashish, sir. Uh, I think, sir, you're still mute. Okay, I'm logging in from two devices. Can you hear me now? Yes, sir. Perfect. Okay, wonderful. Thank you so much, Mohit, for that lovely introduction. I always get embarrassed when I have such an elaborate introduction of mine. Um, Dear friends, a pleasure and a privilege to be here with all of you. Good morning, Dr. Sangeeta. So very kind of you to have given me this opportunity to interact with this lovely crowd. First of all, if you can hear my voice clearly, every one of you, can you please give me a thumbs up? Can you please give me a reaction? And Dhruv, I can see you lying down. It would be better if you can either get up or switch off your video. Okay, wonderful. Absolutely. So today, very delighted to talk to a young crowd like you at such a moment like this when you are due to take the next big step towards making your life, making your career,
making all that you have always dreamt of about yourself. My name is Dr. Ashish Johri. I primarily work with people. I work with people of all types. I work with students. I work with professionals. I work with academicians. I work with so many people. And what I do with them is I help them in discovering their inner potential. We all sail through rough weathers, dear friends. We all have our own turbulent times. And it is in these times that we need someone who can talk to us, someone who can make us look inside ourselves, someone who can make us realize the potential that we all carry. I, in my own limited way, try to make this happen. That is, in a nutshell, of what I do. Well, so let me ask you a question before we start today's session. Will you permit me to ask yourself a question, dear friends? Yeah? Yes or no? You can use the chat box. Will you permit me? Oh, wonderful. Great. Lovely crowd you have. So, my question to you is when you first came to know that there is going to be a session on success mindset, what was your first thought? What was your first thought? Acha, do you want this to be a interactive one? I mean, wherein we keep talking, keep the conversational ball rolling. Do you want it like that, or do you want that I should uh, keep on, talking and just downloading information? That is number one. Number two, would you want this to be a primarily English language session, or would you want this to be a mixed session? I can speak English, I can speak Hindi very well. I can speak and understand Punjabi, of course. Mixed, mixed. Okay, okay. Thank you so very much. धन्यवाद आप सबका. बिल्कुल ठीक है. तो हम इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों विधाओं में, दोनों भाषाओं में बात करेंगे मित्रों. और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ओके, तो आप बिंदास, बेबाक, निर्भीक होकर मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं कि सर हर बार हरियाणवी में कर लो सर. नहीं भाई, हरियाणवी मुझे सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, समझना भी मेरे लिए आसान है, बोलना मेरे लिए मुश्किल है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरा बाद में मजाक उड़ाएं. तो हरियाणवी वाला मैटर आप संभालिए, मैं हिंदी तक ही सीमित रहूंगा. ठीक है. तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, दोबारा समझाने के लिए, दोबारा उस पॉइंट को उसका रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं. राइट. सो विल कीप दिस ओपन, विल कीप दिस इंटरैक्टिव, विल कीप दिस इन अ वे. ऐसा रखेंगे कि थोड़ा सा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा मैं आपकी सुनूंगा, थोड़ा सा आप बोलेंगे, थोड़ी सी आप मेरी सुनेंगे, और तब हम इस सत्र को, इस सेशन को अपने जो उसका गंतव्य है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका आउटकम है, जिसके लिए हम और आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस रूप में और उस दिशा में हम इसको बेहतर ले जा पाएंगे. ठीक है. ओके. तो मेरा सवाल जो आपसे था कि जब आपको पहली बार मालूम पड़ा कि भाई एक सेशन ओरिएंटेशन डे नंबर 9 में सक्सेस माइंडसेट पे होने वाला है और कोई आशीष जौहरी आकर आपसे बात करेंगे, तो आपका पहला विचार क्या था? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? ये मेरा सवाल है. लेट मी हैव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. एजे, कुछ नया सीखने को मिलेगा. एजे मेरा नाम आशीष जौहरी कह रहे हैं मुझे आप. ओके. कुछ नया सीखने को मिलेगा. थैंक यू आदित्य, धन्यवाद. बस केवल आपको ही मुझसे उम्मीद थी आदित्य, मैं आभारी हूँ. न्यू मोटिवेशन, इट विल बी इंटरेस्टिंग. ओके.
जरा मुझे तो ये बताया गया था कि हमारी यंगर जनरेशन को टाइप करने में काफी आनंद आता है, तो जरा अपनी उंगलियों को कुछ गति दीजिए, कुछ ऊर्जा दीजिए, कुछ मुझे इस बात का आभास दिलाइए कि मैं एक युवा वर्ग के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। लर्निंग सो मेनी थिंग, मे बी न्यू बिगिनिंग, यस सर, ओके, समथिंग व्हेन न्यू। भाई कमाल है, लोगों ने कहा कि मिक्स भाषा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन यहाँ तो सब धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मोटिवेट, विल गेट समथिंग न्यू लर्निंग। वेल विल टेल आफ्टर लिसन यू। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, सुनने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन मैं आउटकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशा की बात कर रहा हूँ, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। हर चीज से हमें कोई ना कोई उम्मीद होती है। आप जब इस संस्थान में दाखिला देने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, करियर को ध्यान में रखकर आए हैं, तो एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ, भविष्य की एक दृष्टि के साथ आए हैं। यू हैव कम हियर विद द साइट ऑफ अ फ्यूचर, इजंट इट? And if we do not visualize a future, if we do not have an expectation of future, can we do something to achieve it? क्या जब हमें भविष्य के बारे में कुछ अपेक्षा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, तो क्या हम ऐसे भविष्य के प्रति कार्य कर सकते हैं? Can we work towards a future about which we do not have any idea? And that is what we will try to explore in the session that we have today. ये सत्र जो हमारे आपके बीच में रहेगा, हम उसी विचारधारा के बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज है जो हमें आगे ले जा सकती है, वहां ले जा सकती है जहां हम जाना चाहते हैं, या जिसकी हमने एक परिकल्पना की हुई है। ओके, यस, ठीक है, ठीक बात है भाई। ये नो नो किस बात का लिख रहे हैं? मेरी मेरी बात पसंद नहीं आई? ओके, so I'll request, please, if you allow me to share my screen with you. Sir, please don't use heavy Hindi words. Purnima. Okay. Well, ठीक है, मुझे लगा नहीं मैंने कोई भारी भरकम हिंदी का प्रयोग किया है। मैं सिर्फ एक आम बोलचाल की हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका ध्यान रखूंगा। धन्यवाद पूर्णिमा मुझे बताने के लिए। मोहित जी, मुझे राइट्स दे दीजिए। आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन प्लीज। Sir, yes. Yes, sir. I'm doing the same. Dr. Ashish, you are a co-host, so you may very well share your screen, please. I'm trying to click. Okay, please make Synergy HR the co-host, because that is where I'm using my laptop to log in. Oh, I see. Yeah. Yeah, I've made. Thank you, madam. Friends, can you see my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Is it visible? Yes, it is very much. Thank you. Okay. चलिए बात करते हैं सक्सेस माइंडसेट के बारे में। हाँ जी, यस और नो? बट बिफोर वी स्टार्ट, हम जो बात करना शुरू करते हैं या बात करेंगे इस इस टॉपिक के बारे में, जिसे हम सक्सेस माइंडसेट कह रहे हैं, एक सवाल आप लोगों से जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। और वो सवाल क्या बल्कि एक टास्क है। और टास्क आप लोगों के लिए है, राइट योर नेम पुटिंग एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग यू इन द चैट बॉक्स। अपने नाम के आगे
एक एडजेक्टिव के साथ अपने नाम को चैट बॉक्स में लिखिए। और ध्यान देने लायक वाली बात यह है कि ये एडजेक्टिव जो आप यूज करेंगे, इस एडजेक्टिव का पहला लेटर आपके नाम के पहले अक्षर से मिलता होना चाहिए। द एडजेक्टिव शुड बिगिन विद द सेम लेटर एज योर नेम। और इस काम के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का समय है, तो प्लीज जरा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए एंड लेट मी सी हाउ वेरी क्विक थिंकर यू आर। Patient Purnima, Renu Royal. It should be Royal Renu. Luckiest Lakshmi. Great. Good. हम लगभग 93 पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे पास अभी तक सिर्फ 4 रिस्पॉन्सेज आए हैं। इसका मतलब हमारे पास युवा वर्ग नहीं है। We don't have the young people. Bring some more creativity. It should be attentive Aman, not Aman attentive. Generous Gaurav. Attractive Aditya. Himanshu, honest. Okay. 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 We still have few seconds. Attractive Aniket. Okay, what else? No, honest Janvi will not go because honest is with H, Janvi is with J. Kaushiki, kind Kaushiki. Okay, Harshita, heatful. I doubt if there is a word called heatful. Now, these adjectives, do they really describe you? Just think for a moment. Just think for Anjali, are you really ambidextrous? Can you really do you know what is the meaning of that word ambidextrous, Anjali? So can you write with both the hands? Laughable Lakshita. Laughable means that someone can laugh at you. Are you that type, Lakshita? Sensitive, alive Ashana. Oh, great. Now the momentum has caught up. I'm happy. I'm happy. Thank you so very much. The time is up. We shall put a pause to it. हम इसको रोकेंगे यहाँ पर। मैं बस आपसे एक विचार के बारे में आग्रह करूंगा। I'll request you to just think the adjectives that you have used, do they really describe you? Do they really capture your essence? क्या ये वास्तव? No, don't answer me. Don't answer me. Just think. Just think. जब आप अपने आप को रॉयल कहते हैं, जब आप अपने आप को ऑनेस्ट कहते हैं, जब आप अपने आप को डिम्योर कह रहे हैं, जब आप अपने आप को उन सारी शब्दावलियों से चिन्हित कर रहे हैं, you are describing yourself. How much of the congruence do these words have with you? क्या ये सिर्फ एक जवाब है? क्या ये सिर्फ एक रिप्लाई है? ये एक सवाल का हमें देना है, या ये क्या वास्तव में हमारी पहचान है? और इसकी तह में एक बहुत छोटी सी बात है, और वो चीज ये, द मोर वी नो आवरसेल्व्स, द मोर वी आर अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स, द मोर वी आर एबल टू क्रिएट आवर आइडेंटिटी। हम अपनी पहचान अपनी खुद की नजर में तब बना पाते हैं जब हम अपने आप को पहचानते हैं। और हर डेवलपमेंटल जर्नी का, हर आगे की जो द पाथ दैट वी टेक फॉर development, for success, for onward journey, all that starts from ourselves. Does that make sense to you? Just be with this thought. Let me take you further. Okay, so on your screen, you will see a character from Disney movies. Can you recognize? पहचान सकते हैं कौन है ये? Can you recognize this character? It's a very well-known character. Yes, it's not a jinn, इसे जेनी बोलते हैं। अलादीन का जिन, बिल्कुल ठीक कहा। जिन हिंदी में बोलेंगे, जेनी जीनी। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी अलादीन की। हाँ जी, विल स्मिथ ने उसमें जीनी का रोल प्ले किया था। रिमेंबर, देखी थी आप लोगों ने? तो जीनी क्या करता है? जीनी आपको 3 विशेस देता है। हाँ, यस। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मान लीजिए आपको अलादीन का ये चिराग मिल जाता है, आप उसे रब करते हैं और एक जीनी आपके सामने आ जाता है और आपको
3 नहीं, सिर्फ एक विश मांगनी है, और वो विश है ये अलादीन का जीनी आपसे ये पूछता है कि इफ देयर इज वन थिंग दैट यू वुड वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट वुड दैट बी? If there is one thing that you would want from your life, what would that be? Answer in one word. एक शब्द में इसका जवाब दीजिए. Success, power, skill. Want to go back? One word answer. Power, wealth, loyal, millionaire, maturity. Knowledge, happiness, change my past. Happiness, okay. Knowledge, secure future. To be a good person first. That's really touching, Ashima. Thank you so much. Mindset is his power, okay. Success, happiness, success, okay. Read everyone's mind. Well settled in future, okay. Focus, okay. Focus. जब आप ये सारी चीजें कह रहे हैं, पावर, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, नॉलेज, वेल सेटल्ड इन फ्यूचर, सक्सेस, माइंडसेट, वेल्थ, हैप्पीनेस, ऑल दैट, ये सारी की सारी चीजें, गुड हार्ट, दैट्स रियली टचिंग. सो गुड, मीनू. थैंक यू सो मच. वेरी नोबल. वेरी वेरी नोबल. लैम्बोर्गिनी, दादा उसकी स्पेलिंग तो ठीक लिखना सीख लो, लैम्बोर्गिनी की, दिनेश जी. ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, दरअसल ये एक. मानसी, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड द हैंड. रजनीश, यू हैव वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड द हैंड. कोई सवाल पूछना चाहते हैं? रजनीश और मानसी, आपने हैंड रेज किया है. ओके. all this that you are asking for can be covered in one umbrella. हम एक चीज में ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं. हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हम में से सारे लोग, और वो चीज सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने जीवन में जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो हम करना चाहते हैं उसमें हम सफल हो जाएं. Whatever we want to do, of course, if it is acceptable, if it doesn't harm others, whatever we want to do, we should be able to achieve that. That is the only simple thing that we want. And if you look at it, that is what success is. That is exactly what success is. So success is not something which is way big, which is something that you have to work constantly to attain, which will come at a later stage. No. Success comes instantly. Today I was trying to log in to this meeting to come and talk to you. आज मैं जब log in करना चाह रहा था आपसे बात करने के लिए, अगर मैं log in कर पाया टाइमली तो मैं सक्सेसफुल हो गया. किसमें? उस टास्क में जो मैं करने जा रहा था. और जब इस टास्क में सक्सेसफुल हो गया तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे दूसरे टास्क में. और दूसरा टास्क मेरा क्या है कि इस सेशन को कंडक्ट करने का, इस रूप में, इस स्वरूप में कि ये आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए हितकर हो. That is my second task. And when I complete that task, no, you don't have to say this in one sentence to the Jenny, you have to say this in one sentence to me, Dinesh. When I keep doing these tasks, these small tasks, छोटे छोटे ये टास्क मैं करता जाऊंगा, तब मैं धीरे धीरे सफल होता जाऊंगा. और ये जो मैं अभी जो मेरा टास्क है, इस वार्तालाप को, इस बातचीत को, इस सेशन को आपके साथ सक्सेसफुली कंडक्ट करने का, ये मैं जब ये सेशन कंक्लूड करेगा तब मैं सोचूंगा, have I been able to deliver what I wanted to deliver? Have I been able to share with you the thoughts that I wanted to share? क्या मैं आपसे वो विचार कह पा रहा हूं? बट अगर आप देखें the life that we have,
ये जो जीवन हमारा आपका है, ये जो चीज हम आप लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टास्क में सक्सेस करना पड़ेगा. ओनली देन विल बी एबल टू अचीव. So the life that we are dreaming for ourselves, the life that we are envisioning for ourselves, if we take that as a framework, if we take this as an outcome, the task that we undertake today, वो कार्य जो हम आज लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन से कंसर्निंग हो, चाहे वो मेरे अपने ग्रूमिंग से कंसर्निंग हो, चाहे वो अपने आप को डेवलप करने से कंसर्निंग हो, ये छोटी छोटी चीजें हम लेके चलते हैं, तब कहीं जाकर हम वहां पर उस चीज को अटेन कर पाते हैं जो हम अटेन करना चाहते हैं, और तब हम सफल होते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज सक्सेस ऑल अबाउट. डू यू अग्री? Do you agree with me? If you agree with me, write yes. Write yes. Thank you. Let me share with you a story. Would you like to listen to a story? छोटी सी एक कहानी है. हाँ जी. ये जो मेरी कहानी है, ये बार्नयार्ड डक के बारे में है. बार्नयार्ड डक समझते हैं? बार्नयार्ड समझते हैं? बार्नयार्ड क्या होता है? बार्नयार्ड होता है एक बाड़ा. बाड़ा, यू अंडरस्टैंड? अगर आप कभी उसमें जाएं, इफ यू हैपन टू गो टू द रूरल साइड, यू विल फाइंड फार्म हाउसेस होते हैं. फार्म हाउसेस में जहाँ ये यू नो डक्स एंड हेन्स, पोल्ट्री को रखते हैं जहाँ पर, तो एक छोटा सा बड़ा पेरीमीटर क्रिएट कर देते हैं जहाँ स्मॉल एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स एंड पोल्ट्री दैट इज केप्ट, isn't it? That is known as a barnyard. तो मेरी कहानी एक डक के बारे में है. डक एक ए क्लास एव्स का, या यूं कहिए बर्ड की एक वैरायटी है. यस. और देयर आर डिफरेंट एनक्लोजर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर संगीता. थैंक यू सो वेरी मच. सो दिस डक, द डक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो है एक जंगली बतख है. You know, there are so many species. I'm not talking about the duck that you see in the cities. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सफेद बत्तख आप शहरों में देखते हैं. मैं बात कर रहा हूँ उन बत्तखों की जो जंगलों में रहती हैं, जो कि पालतू नहीं होती. तो जो जंगल में रहती हैं वो स्वच्छंद, एकदम फ्री माइंड में है. उनके लिए टेरिटरी कुछ नहीं होती, वो किसी एनक्लोजर में रहने की आदी नहीं होती, आजाद रहती हैं. उन डक्स के बारे में मेरी कहानी है. और जैसा कि हर बर्ड्स में खास तौर से होता है, दे व्हेन द सीजन इज अनफेवरेबल, जब सर्दी होती है या मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं होता, उनके लिए फेवरेबल नहीं होता, तो वो बहुत दूर उड़कर जाती हैं दूसरे क्षेत्र में, इन डिफरेंट रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज फेवरेबल. या एंड व्हेन द climate at the native place turns favorable again, they come back. This is known as migration. It's a regular phenomenon. So my story is about a duck known as Valley. वैली नाम का एक डक है जिसके बारे में ये कहानी है. वैली अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहता है. वैली एक बत्तख है, एक वाइल्ड डक है. दोस्तों में उसका बहुत एक्सेप्टेंस है. उसके दोस्त उसे चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, और उसके दोस्तों के साथ उसका जो समय है वो बहुत अच्छा बीत रहा है. वैली अपने दोस्तों में एक नेता की तरह सा है, नेतृत्व क्षमता है उसके अंदर. वो बहुत ही मजबूत उड़ने वाला बत्तख है. ही कैन फ्लाई, ही इज वेरी स्ट्रांग. सो माय स्टोरी इज अबाउट अ टाइम जब जंगल में कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, सर्दी बढ़ रही है, खाना कम हो गया है, और ये सवाल का वो समय है जब वैली अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे प्रदेश में, जहाँ भोजन है, अनाज है, टेम्परेचर फेवरेबल है, वहां जाने की तैयारी कर रहा है.
तैयारी क्या कर रहा है, बल्कि उड़कर जा रहा है. So they are traveling from one place to another. They have been flying for hours and hours together. बहुत घंटों से वो लगातार उड़ रहे हैं, थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन उन्हें रुकना नहीं है. अगर आप इन पक्षियों को उड़ते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका एक पैटर्न होता है जिसमें वो उड़ते हैं और वो समूह में उड़ते हैं. और इन पक्षियों के अंदर अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत कमाल का होता है. You will see that they adhere to the group lines and they are a community in themselves and they follow the rules of those communities. तो ऐसे ही किसी जगह जा रहे हैं, उड़ते 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 वैली. यस, इट्स अ वी शेप पैटर्न और अ सी शेप पैटर्न. उड़ते उड़ते अचानक से वैली की नजर नीचे जाती है और जब वो नीचे देखता है तो उसे दिखता है एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हरा भरा मैदान. दरअसल वो एक बार्नयार्ड है और उस बार्नयार्ड में बहुत सारे मुर्गियां, उनके चूजे, उनके बत्तख जो दाना बिखरा हुआ है उसको चुग रहे हैं. वहां एक बड़े से मिट्टी के घड़े में पानी है, नांद बोलते हैं हमारी तरफ. बिग, यू नो, place where this water is kept. The barnyard is very cozy, very comfortable, very warm. वैली की नजर जाती है. लंबी उड़ान से वो थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है, खाना मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और यहाँ नीचे इतनी बेहतरीन जगह है. वैली अपने दोस्तों से कहता है, यार थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ रुक जाएं और थोड़ा सा भोजन लेकर आगे बढ़े तो कैसा रहे. लेकिन वैली के दोस्त कहते हैं, अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें भूल गए हम रास्ते में, यह हमारा नियम है कि हम रुकते नहीं हैं. This is what we have been following. And Valley says, no, I am not in agreement with you. मैं तुमसे सहमत नहीं हूं. वैली सोचता है कि वो तो एक सक्षम उड़ने वाला है. अगर थोड़ी सी देर के लिए वो दो चार दाने चुग कर वापस इन्हें ज्वाइन कर लेगा तो क्या बुराई है. भूख तो लगी हुई है ना. और जितनी देर में ये लोग आगे जाएंगे मैं पकड़ लूंगा क्योंकि मैं तो तेज उड़ता हूं. ये विचार आते के साथ ही वैली ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वो नीचे बार्नयार्ड में लैंड कर गया. He landed amongst the barnyard. There was corn all across. There was warmth all across. There was food, water, everything. Valley felt very happy. And he thought, उन्होंने सोचा वैली ने, वाह ये तो मजा है, मजा आ गया. क्यों ना ऐसा मैं करूं कि मैं यहां पर रुक जाता हूं और मेरे जो दोस्त जब वापस आएंगे तब मैं उन्हें दोबारा ज्वाइन कर लूंगा. ये सोचते के साथ ही वैली ने सोचा मैं वहीं रुक जाता हूं. दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए. वैली ने जी भर के अपना समय वहां एंजॉय किया. लेकिन एक समय के बाद वो बोर हो चला था. वो अपने मित्रों की कंपनी को मिस करता था. एक दिन वो आशा भरी निगाहों से ऊपर आसमान पे देख रहा था कि उसके दोस्त वापस अपनी जगह जाते हुए, उड़ते हुए दिखाई दिए. वो उसकी पुराने घर की तरफ जा रहे थे. उसके दोस्तों ने भी उसकी कमी खली महसूस की थी. इधर वैली भी उस जगह से बोर हो गया था. वैली ने आवाज लगाई, उसके दोस्तों ने देखा, उसके दोस्तों ने कहा, वैली हमने तुम्हें बहुत मिस किया, आ जाओ यार, चलो वापस चलते हैं. वैली ने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन ये क्या, इतने महीनों की निष्क्रियता, इनएक्शन की वजह से वैली का शरीर भारी हो गया था. वो उठ ही नहीं पा रहा था. वो वैली जो इतना मजबूत उड़ाका हुआ करता था, उसका शरीर भारी था, उसके पंखों में वो जान नहीं थी. और इतनी देर में उसके दोस्त उस बार्नयार्ड से निकल गए. लेकिन वैली ने हिम्मत नहीं हारी. वैली ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं शायद अभी थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, आगे जब ये वापस जाएंगे तो मैं इन्हें ज्वाइन कर लूंगा। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में, और एक दिन वैली ऊपर देखता है तो पाता है कि उसके दोस्त वापस फिर से माइग्रेट कर रहे हैं अपने घर से दूसरी जगह जाने के लिए, जो कि वो साल में हर बार करते थे। उसके दोस्त उसे फिर बुलाते हैं। वैली फिर अपने पंख फड़फड़ाता है, और इस बार वो क्या पाता है? इस बार वो पाता है कि वो उठ भी नहीं पाया। वो इतना भारी हो चुका है और उसके पंख आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से इतने कमजोर हो चुके हैं कि उसके वेट को वो सपोर्ट ही नहीं कर पाते। वो वैली जो एक फड़फड़ाहट से आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ जाया करता था, आज निष्क्रियता की वजह से वो एक वाइल्ड डक से एक डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक डक में तब्दील हो चुका है। वैली का दिल टूट गया। उसने आंसू भरी नेत्रों से अपने गुजरते हुए उन मित्रों को देखा जिनके साथ कभी वो आसमान की ऊंचाइयां नापा करता था। और फिर उसकी समझ में आया कि वो अल्टीमेटली अपने जो उसकी ट्रू नेचर थी उसको खोकर एक बिल्कुल ही दूसरे एंटिटी में, एक दूसरी ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। दैट इज ऑल इन माई स्टोरी। पसंद आई आपको? डिड यू लाइक दिस स्टोरी? इफ यू लाइक इट, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। थैंक यू। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन हियर। एक सवाल है मेरा यहाँ पर आपसे, और वो सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी? इस इस कहानी का टर्निंग पॉइंट कहाँ है? कहाँ से ये कहानी एकदम ट्विस्ट हो जाती है? ब्रेकिंग द रूल। डिड ही ब्रेक द रूल? पूर्णिमा, डू यू रियली थिंक सो? Okay, let us let us hear from others. When he thought to break the rule, okay, good. When the valley changed its part to the barnyard, okay, yes. But मुझे एक बात बताइए, what was wrong with that? अगर वैली ने ऐसा सोचा तो इसमें गलत क्या था? If he broke the rule, what was wrong in that? And that is the question I want to ask. वो भूखा था, वो प्यासा था, उसके दोस्त उसके साथ नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर आप होते तो क्या करते? ऐसी स्थिति में अगर आप होते तो आप क्या करते? ये हम ओवर कॉन्फिडेंट था, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने बाद में उसके आउटकम सुना। उस समय तो वो सही था। हम लोग वैली की तरह नहीं होते हैं क्या? आर वी नॉट ऑल लाइक वैली? What was wrong with him? We also take decisions. We also make choices. Choices that later on we evaluate and we find that they did not lead to the desired outcomes. हम भी तो ऐसे चयन, ऐसे चुनाव, ऐसी चॉइसेस करते हैं जो आगे चलकर हमें पता देती हैं कि हमें नहीं पता होता कि वो आउटकम्स वैसे थे जो हमने सोच रहे थे या नहीं। ये तो हम आज इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उसे वापस जाना चाहिए था या नहीं। उस समय द पॉइंट वेयर द स्टोरी टर्न्स, हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो हमारी लर्निंग क्या है इस कहानी से? हमारी लर्निंग क्या है? व्हाट डिड वी लर्न? व्हाट डू वी लर्न?
there are two very important things, that come out. Point number one, our choices are important. Our choices are very, very important. Sometimes we make a choice, and sometimes the choice makes us. Sometimes we make the choice, and sometimes the choice makes us. Hence, choice is absolutely very, very critical, very, very important. And we choose so many things. हम बहुत सारी चीजों का चुनाव करते हैं. हम चुनते हैं अपने कॉलेज, हम चुनते हैं अपना कोर्स, हम चुनते हैं अपने मित्र, हम चुनते हैं अपना सर्कल, हम चुनते हैं अपना वो सपोर्ट सिस्टम जिसको हम लगातार एक्सेस करते हैं. और वहां हर छोटी छोटी चीजों में हमारा चुनाव, हमारी चॉइस डिसाइड करती है कि हमारा आउटकम, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होना है. यस और नो? कभी अपने प्रेजेंट कंफर्ट के लिए फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहिए. हम नहीं कह सकते कि जो हम अभी कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी राइट हो. बिल्कुल ठीक बात है निशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा. आउटकम तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमें नहीं पता कि आगे क्या होता है. लेकिन इससे हमारी जो जिम्मेदारी है हमारे चुनाव, चॉइसेस के लिए, the responsibility that we have towards making a choice, that should not be taken away, that must not be surrendered. That is what I'm trying to say. समझ रही है निशा मेरी बात? थैंक यू सो मच फॉर दैट इनपुट. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज ये बिल्कुल सही बात है कि हमें आउटकम के बारे में नहीं मालूम होता, लेकिन चुनाव, चयन, चॉइस वो हमारे हाथ में होती है, और उसके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, जिससे कि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि हमने प्रॉपरली चॉइस नहीं करा. That is the number one thing I wanted to share with you. That is learning number one. Learning number two is, it is only a matter of thought. मोहित सर, अगर आप एनोटेशंस ऑफ कर सकते हैं सेटिंग्स में तो चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी. इफ यू कैन डू दैट, सेटिंग्स में अगर आप इसके जाकर, यू जस्ट हैव टू switch the annotations off. I'm happy to see the students are quite energetic and enthusiastic. Every thought is important. What thoughts we entertain in our mind, हम अपने मन में किन विचारों को रहने देते हैं, जगह देने देते हैं, क्या हम सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. प्रियल, हम फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती. लेकिन अगर हम अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हों तो हम प्रेजेंट में उसके बारे में बेस्ट पॉसिबल सोच सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज एसेंशियल. दीपक, आप कहते हैं वैली को कंफर्ट जोन पसंद था, तो ये किसको पसंद नहीं है? कंफर्ट जोन तो हम में से सबको पसंद है. हम में से हर कोई अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है कि नहीं? कंफर्ट जोन से बाहर कौन निकलना चाहता है? इसीलिए तो हम आज सक्सेस और सक्सेस माइंडसेट की बात कर रहे हैं. Let's leave Valley aside for a while. Let's move further. We'll take up the questions later on. Okay. So, as I said, thoughts are important. So today we talk about how thoughts can be influenced and what is the reach, what is the power of these thoughts. How we can, upgrade our thoughts to create a future that we desire. Right? So ये बताइए मुझे, एक थॉट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक विचार आपके साथ में शेयर करता हूं. जस्ट हैव अ लुक.
Every thought is a cause, and every condition is an effect. You change your thoughts and you change your destiny. That is the power of thought. हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं, आज आप जो भी एक्शन लेते हैं, whatever you decide to do, अगर आप ये कहते हैं मुझे फ्यूचर पे काम करना है, that is an action that you have decided to take. It has an origin in the thought. Every single choice that you think of attempting is an action. वो सारी choices जो आप कर रहे हैं वो एक action है, और उस action की तह में, उस action के पीछे, उस action की origin में, शुरुआती में, तह में ये है एक thought. So be very careful about what you think, because that is how you will create the destiny, or you will create the future that we are talking about. Having said this, let me ask you, थॉट का माइंडसेट से कोई कनेक्शन है? और अगर माइंडसेट है, ये काफी इंटरकनेक्टेड रहता है ना, हम लोग सक्सेस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो ये माइंडसेट है क्या? व्हाट इट इज दैट वी आर टॉकिंग व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट? क्या समझते हैं आप? क्या लगता है आपको? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? माइंडसेट किसे कहते हैं? एनी इनपुट्स? नो आइडिया? ओके, कोई बात नहीं. Mindset are the belief that orients the way we handle situations. Not just which makes you feel you are right there. Not just that. माइंडसेट हमारा बिलीफ सिस्टम है. बिलीफ सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो हमें चॉइसेस लेने देता है. द बिलीव्स आर द वे वी मेक चॉइसेस. यस, व्हेन वी सेट आवर माइंड टू अचीव आवर गोल, then to achieve that goal we will undertake a set of actions. अगर हमने कोई गोल डिसाइड किया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम कुछ चीजें करेंगे. तो क्या चीज हमें उन एक्शंस को करने देती है, डिसाइड करने देती है, वो सिस्टम जो है उसे हम बिलीव कहते हैं, और वही सिस्टम को हम माइंडसेट कहते हैं. सो माइंडसेट इज कनेक्टेड. माइंडसेट इज अबाउट मेकिंग अ चॉइस. यू गेटिंग दैट? So if you are wanting success, if we are trying to achieve happiness, if we are trying to achieve prosperity, if we are trying to achieve wealth, if we are trying to achieve a Lamborghini, somebody said that, are we making the right choices which are propelling us in that direction? क्या हम वो choices कर रहे हैं जो हमें इस आउटकम की तरफ ले जा रही हैं? Just reflect. सोचिए, जवाब मत दीजिए मुझे, बस सोचिए. और अगर हम ऐसे एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अगर हम इस दिशा में गहराई से नहीं सोच रहे हैं, अगर हमारे चॉइसेस इस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, तो या तो हमारी ये डायरेक्शन गलत है, या हमने सोचा गलत है, या हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है, हमने सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जवाब दे दिया है. यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? The mindset controls your actions. Do you see the screen before you? पहचानते हैं इस मूवी को? बड़ी फेमस मूवी है. सवाल ये है कि दो इंडिविजुअल्स थे एक ही सर्कमस्टेंसेस में, है ना, और दोनों के रास्ते अलग अलग थे. तो ये जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है या हमारी चॉइस होती है? ये सवाल है. हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो माइंडसेट हमारा होता है या हम डेवलप करते हैं,
ये जैसी परिस्थिति हमारे चारों तरफ होती है उससे गवर्न होता है, या ये हमारे ऊपर होता है कि अ, उस हम कैसा सोचें या हम कैसा माइंडसेट रखें। सिचुएशन, चॉइस, सिचुएशंस, आई हैव नो आइडिया, ऑफ कोर्स, चॉइस। सिचुएशन, कभी कभी खुद की चॉइस भी होती है और कभी कभी सिचुएशन भी इजी हो जाती है। ओके, दोनों हो सकता है। टू ऑल दोज पीपल जो कह रहे हैं दोनों हो जाता है, एंड दे आर प्राइमरली फ्रॉम बीबीए बैकग्राउंड, आपको ग्रुप डिस्कशन में और पर्टिकुलरली आगे चलकर जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे, तब जो जीडी प्रोसेस होती है जो कंपनीज देती है, उस जीडी में अक्सर ये सिचुएशन आती है जहां दोनों पॉइंट्स आपको सही लगते हैं, और तब जब आप कहेंगे कि दोनों चीजें ठीक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन लेने में आप कहीं चूक कर रहे हैं। जब हम दो ऑप्शन दे रहे हैं तो सेलेक्ट वन ऑप्शन एंड दैट शोज योर डिसीजन लेवल। ओके, दैट इज जस्ट अ थॉट। सेकेंडली, आप में से सारे लोग जो कह रहे हैं सर्कमस्टांसेस गवर्न करते हैं, तो आप देखिए, अगर इस मूवी की बात करें तो दोनों कैरेक्टर्स जो हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, उनकी सिचुएशन एक जैसी थी। एक ही घर में, एक ही माँ से दो भाई, एक जैसी परिस्थिति में, एक की डायरेक्शन अलग, दूसरे की डायरेक्शन बिल्कुल अलग। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो इस द्वंद्व या इस कॉन्फ्लिक्ट को आपने देखा होगा, ईच ऑफ देम। सो इट सीम्स that it is not about situation, it is about the choices. It is not about the nature, it is about the nurture. और आप बीबीए जो हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पर वो आगे चलकर अपने एचआर की कोर्सेज में इस चीज को पढ़ेंगे, प्रॉब्ली समवेयर इन ओबी यू विल अंडरस्टैंड दैट, यू विल रीड मोर अबाउट दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। देयर इज अ बॉडी ऑफ रिसर्च, खूब रिसर्च हुई है इस पे, जो ये बताता है कि इट इज नॉट द इवेंट्स ऑफ आवर लाइव्स दैट शेप अस। हमारे जीवन की परिस्थितियां हम पर उतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि हमारा स्वयं का चुनाव, कि हम उन परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करें। हाउ डू वी बिहेव इन दोज सिचुएशन, आवर चॉइसेस शेप हु वी आर। द कंट्रोल इज नॉट इन आवर सिचुएशंस। तो आप में से जो लोग या हम में से जो लोग ये सोचते हैं या दोष या ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशन को फेस कर देते हैं, डाल देते हैं, रिमेंबर दैट इट इज नॉट द सिचुएशन, इट इज आवर चॉइस। आवर चॉइस। इट वॉज नॉट द बार्नयार्ड, इट वॉज वैलीज चॉइस। ही कैन नॉट escape the responsibility of that choice. Does it make sense to you? आइए मैं आपको इन सज्जन के बारे में बताता हूं। कैन यू मेक आउट हु ही इज? वियतनाम का नाम सुना है आपने? वियतनाम वॉर हुई थी। अमेरिका की ट्रूप्स लगभग 12-15 साल वियतनाम जैसी एक छोटी सी देश में पड़े रहे थे। वियतनाम में रिबल्स थे, उनको सप्रेस करने के लिए अमेरिकन ट्रूप्स, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंस है। वियतनामीज रिबेल्स जो थे, उन्होंने अमेरिका के दो प्रमुख सैनिकों को पकड़ लिया, दे कैप्चर्ड, और उन दोनों मिलिट्री मैन को, आर्मी पर्सनल को जबरदस्त टॉर्चर किया फॉर इंफॉर्मेशन। उन्हें जंक लगी चेन से मारा करते थे, उन्हें सीमेंट की बड़ी बड़े स्लैब से बांध के रखते थे, खाना देना तो दूर की बात है। बड़ा डिप्रेसिंग, और कोई जरिया नहीं था इन दोनों सैनिकों को पास कि वो उस कैद से छुटकारा उन्हें कभी मिल पाता। दुश्मन थे भाई। उनमें से एक ने उनमें से एक ने ये सोच लिया
कि अब जीवन खत्म है, देयर इज नो लाइफ, अब इससे ज्यादा पेनफुल क्या होगा, मैं कभी यहां से बच के निकल नहीं पाऊंगा, देयर इज नो लाइफ फॉर मी आफ्टर दैट, एंड ही कमिटेड सुसाइड. One day he could not take the torture anymore. The other person in those moments discovered something greater, something deeper inside him. And he realized that all this is for a purpose. ये सारी तकलीफें, ये सारा अनुभव, ये सारा सिचुएशन जिसके थ्रू वो जा रहा है, इसका एक ग्रेटर पर्पस है. And he held on to that hope. He held on to that belief. He held on to that choice. His body withstood the tortures, but his mind was unbroken. Over a period of time, the American troops rescued that man, that army personnel, and his name is Captain Gerald Coffey. आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उनके बारे में सुनने को मिलेगा. He escaped. He was rescued from that Vietnam prison. एच से कुछ नाम है उसका, लो हुआ या ऐसा कुछ प्रिजन है. इट्स अ वेरी इनफेमस प्रिजन, बड़ा बदनाम था द वर्ल्ड ओवर टॉर्चर के लिए. वहां से वो बचाए गए. And now he spends his time talking about his experience to management students, universities the world over, talking about his experience, how it made him realize what he was. तो आप देखिए, एक ही सिचुएशन में दो लोग, how they chose to interpret the situation created separate destinies for them. One paid with his life, the other one discovered a completely new phase in his life. Let me give you another example. Do you see this lady? Can you guess her age? इनकी उम्र का आप अंदाजा लगा सकते हैं? Just a guess. 80 plus, 80, 106. Gagan Mishra, very, very accurate. Pinpoint. 70 plus, 85, 90 and above 70. ये तस्वीर जब ली गई है तब उनकी उम्र लगभग 92 या 93 साल की है. About 92 to 93. And can you see what she's doing? Can you see what she's doing? She's trekking, yes. Climbing a mountain, not a hill, a mountain. इनके बारे में आपको बताऊं कि इमेजिन कीजिए 70 वर्ष की एक महिला. Imagine a lady of 70 years who has lost her husband 1 year back. एक साल पहले. No, she's not picking up garbage, bro. She's definitely not picking up garbage. This is her walking stick. This is her walking stick. So at the age of 69, she lost her husband due to cancer or something. And it was her burning desire to be a mountaineer in her younger days. Her husband, before dying, made her promise that she will take up her passion for climbing. And at the age of 70, after losing her husband to cancer, she decided that she'll take up climbing the mountains. Now, if you know that trekking or rock climbing or mountaineering is one of the toughest sports, very, very demanding physically and mentally and emotionally. And at the age of 70, when women think of being grandmothers and women think of settling down and not taking any risks in their life,
This lady chose a different realm altogether. And from the age of 70 to the next 25 years, अगले 25 सालों तक यानी 95 वर्ष की उम्र तक, ग्रैंडमदर हुल्डा क्रुक्स, सॉरी ये नाम थोड़ा सा some difference in the slide, मैं चैट बॉक्स में इनका नाम लिख दे रहा हूं, हुल्डा क्रुक्स नाम है इनका. She has climbed virtually every high risen mountain top from Kilimanjaro to Mount Fuji in Japan. This picture that you see is taken while she was climbing Mount Fuji at the age of 92 or 93. हुल्डा नाम है, जैसे आपका नाम हिमांशु है ऐसे उसका नाम हुल्डा है. Imagine that. The choices. It's all about the choices. And that is what success mindset is all about. Getting that? Not the circumstances, not the situations. Situations said something else. She chose to be something else. Make sense? Let me take you further. सवाल ये है कि हमें क्या चीज रोक देती है? Why are we not able to? Why is not everyone else able to, take this up? So एक सवाल आता है, what are our beliefs designed for? ये जो हमारी सोचने की जो हमारी जो सेटअप है, जो हमारा फ्रेमवर्क है या जो हमारा माइंडसेट है, इसका पर्पस या ये हमारे लिए या हमारे लाइफ में कैसे इंटरप्ले करता है? तो एक थॉट आपके साथ में शेयर करूंगा. हमारा जो बिलीफ है या हमारे जो सोच है, द थॉट प्रोसेस दैट वी हैव, बिलीफ कहिए या थॉट प्रोसेस कहिए या माइंडसेट कीजिए, एक ही चीज है. Our mind stops us to do difficult things. Oh, Priyal, I'm so happy you answered that. Thank you so much. Can I ask you why? Why does the mind stop us to do difficult things? Why do you think? What do you think that there is the agenda of the mind that it tries to stop us from doing difficult things? देखिए, जो हमारे बिलीफ हैं या माइंडसेट है या थॉट प्रोसेस है, difficult things first give us sadness. Okay, 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 बेटा, ठीक है. Let me explore it further. Belief या thought process हमारे क्या है? Thought processes are generalizations about our past based on our interpretation of our pain and pleasure experiences. बात समझ में आई कुछ? ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमने अपने एक्सपीरियंसेस जितने भी हुए हैं, उनमें से किसी एक एक्सपीरियंस को पिक किया, ठीक है? और उसके थ्रू हमने बाकी सारे एक्सपीरियंसेस को कैटेगराइज कर दिया. जैसे हमने कहा, फादर्स आर स्ट्रिक्ट. घर में जो पापा लोग होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. मदर्स आर लविंग. माएँ जो होती हैं उनको अपन लोग सेट कर लेते हैं, समझा लेते हैं, लीनियंट होती हैं. और हमने ये कॉमन चीज है, isn't it? I'm sure you would have felt in your households also. पापा से बात करने में डर लगता है, मम्मी से हम इजीली बात कर लेते हैं. दिस इज द जनरलाइजेशन. फादर एक दो बार हमारे साथ स्ट्रिक्ट हुए और हमने ही उन्हें कैटेगराइज कर लिया कि वो स्ट्रिक्ट है. मम्मी हमारे साथ लीनियंट है, अफेक्शनेट है, और हमने ये कैटेगराइज कर दिया कि वो लीनियंट है. हर चीज में ये जनरलाइजेशन काम आता है. हम यूज करते हैं. हम एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमने सोच लिया कि एक बार उसका कपड़ा हमको पसंद आ गया तो हम उसी में उसी के हिसाब से हम चलते रहेंगे.
will keep going to that brand again and again. अगर हमें एक रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ गया तो हम उसी को लगातार पेट्रोनाइज करते रहेंगे। अगर हमें एक पर्टिकुलर प्लेस दैट वी गो फॉर वेकेशन पसंद आ गई, विल कीप गोइंग टू दैट प्लेस अगेन एंड अगेन। सिमिलरली, अगर हमारा एक्सपीरियंस किसी एक कैटेगरी, किसी एक कम्युनिटी के साथ अच्छा या बुरा हो जाता है, हम अपने डिसीजंस भी वैसे ही प्लेस कर देते हैं, isn't it? We categorize people, यार इस जगह के लोग या इस कॉलेज के लोग या इस स्कूल के लोग अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, फॉर दैट मैटर। हमने कुछ एंडियावर शुरू करा, मान लीजिए हमने कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करा, या हमने किसी टीचर के साथ बात करी कभी, और कभी उस टीचर ने हमें डांट दिया, नहीं नहीं यार वो तो है ही ऐसे। सो दीज जनरलाइजेशन हमारा जो होता है, इट दे आर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन व्हाट वी गॉट फ्रॉम देम। डिड वी रिसीव पेन, डिड वी रिसीव प्लेजर? और ब्रेन की जो टेंडेंसी होती है वो होती है टू अवॉइड पेन एंड टू मूव टुवर्ड्स प्लेजर। और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज को समझना, ध्यान से सुनिएगा। Our brain has a tendency to avoid pain and move towards pleasure. हर वो चीज जिसमें हमें तकलीफ होती है या हो सकती है, और ये तकलीफ का मतलब एक्चुअल पेन नहीं है, या तकलीफ का मतलब है एफर्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिना पढ़े हम पास कर देंगे तो आप मुझसे सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। If I ask you, if I tell you that you will pass the exams without studying, without working, without laboring for it, all of you would be very happy, isn't it? I can see the smileys on the chat box. I'm sorry, there seems to be some technical issue that I'm facing. तो मैं आपको slides नहीं show कर पा रहा हूँ. Probably I have been conked out from that ID, but you'll keep hearing my voices. Okay? You'll keep listening to my voice. So we want to avoid pain. We want to avoid effort. We want to move towards pleasure. And that is exactly what Valley did. Valley wanted to move towards pleasure. He wanted to avoid the pain. And that is something all of us are consciously or subconsciously trying to do. And that is why we keep missing what we are trying to achieve. इसीलिए success keeps eluding us for most of us. Do I make sense? सोचा कभी आपने ऐसे? So success mindset is about moving beyond this barrier. Success mindset is about being vigilant, being conscious that we move beyond this barrier. Getting that? And once we learn to control, जब हम इस burden, इस लिमिट कह लीजिए या इस चीज का ध्यान रख लेते हैं, that is when we start overcoming the obstructions to our success. वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो सारे इंटरफेरेंसेस जो हमें रोक देती हैं, हम उन्हें ओवरकम करना शुरू करते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू वॉच आउट फॉर. ओके डियर फ्रेंड्स, thank you so very much. That is all from my side. Thank you so much for being a lovely audience. I really enjoyed being with you all. If there are any questions, now is a good time to ask them. I shall welcome any questions that you have.
I'm sorry I won't be able to see you. There seems to be some trouble logging in, some internet issues I'm facing. But I can see your chat box if there are any questions from your side. Love to answer them. Okay. So dear students, if you have any questions, then you can write in the chat box. In the chat box of your Zoom control panel. So it seems that they don't have any question actually. That's So, okay. That's okay. thank you very much, sir. Your for your motivational words. Thank Indeed, you. the story which you shared, that was very inspirational. That we should never give up, and the hard work is the formula for success. And in fact, I would like to add something about three C's of life: Yeah. choices, chances, and changes. We must make a choice to take a chance, or your life never changes. So throughout the entire story, you were talking about the choices again and again. So Yeah. in fact, I also wanted to say, we should have make our choices that reflects our hope, not the fears. So with this context, I am really thankful to you for your motivational words. I'm sure that I can see the chat box also. They've been asking you, sir, please mat jao and all. Thanks a lot, sir. Now, I would like to invite Dr. Sangeeta Trihanji. She is the Dean Academics and Chair of the Department of Management Studies to say a few words. So the success mindset, students, which is the topic for today's masterclass by Dr. Johri. So you've heard him through and you've been interactive throughout. I've seen that. There has been a very famous American poet. I'm sure you have heard his name. I'm reminded of his verses, Robert Frost was his name. आपने उनकी फेमस लाइंस तो जरूर सुनी होंगी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, but he has of course written scores of poems. So there is another poem by him, The Road Not Taken, which is one of my favorites. So I'm reminded of a few lines of that. Basically the context there is ki there are this poet is traveling through the woods in a forest, and there are two different roads which are diverging, and one of them is like hackneyed path. hackneyed path आप समझते होगे, जिसपे सभी लोग जा रहे हैं, जिन्होंने उसको जिसमें वो जंगल में रास्ता बन जाता है, जब आप वहां से निकल के जाए, कैटल निकल के जाए, तो अपने आप वो पगडंडी टाइप बन जाती है. तो एक इस तरह का पाथ था, और एक जो पाथ था वो ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई नहीं गया. इट वॉज ग्रासी एंड इट वॉज अनएक्सप्लोर्ड पाथ. तो ये जो उन्होंने कहा था, लास्ट की फ्यू लाइंस और शुरू की फ्यू लाइंस मैं कहूंगी, अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग पोएम. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. उनको वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो रास्ता किधर जा रहा है, लेकिन उन्होंने कौन सा पाथ चूज किया? the road which was less traveled by. उन्होंने वो रास्ता चुनाव किया जब वो उस दोराहे पे थे कि कहाँ जाऊं. तो उन्होंने वो रास्ता नहीं चूज किया जहाँ पे सब भीड़ जा रही थी या जा चुकी थी पास्ट में. उन्होंने वो रास्ता चूज किया जो कि अनएक्सप्लोर्ड था, जो कि फुल ऑफ एडवेंचर था, फुल ऑफ डिस्कवरी था और डिफरेंट था. तो अब वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द पोएम ही सेज कि अगर मैं बहुत साल बाद मैं अपनी लाइफ को वापस देखूंगा रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये रास्ता मुझे जहां ले जाएगा, तो मेरे को ऐसा सेटिस्फैक्शन होगा कि जो मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं वो किस वजह से है, क्योंकि मैंने ये लेस यूज्ड रास्ता अपनाया, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, मैंने भेड़चाल नहीं चली, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया और मैंने उस पर डिटर्मिनेशन से मैं आगे बढ़ा. सो सुनिए, लास्ट की जो लाइंस है वो मुझे याद है. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो ये उनकी जो पोएम है, ये जो लास्ट लाइंस हैं, that has made all the difference. So basically, retrospectively, he is attributing all his success, all his glory in life
to the choices he has made. So my dear students, in today's masterclass, Dr. Johri has tried to bring home the importance of the choices that you make. He has, I think, tried to dwell on this variously. Very beautiful stories he has told, whether it was the Barnyard Duck story or whether it was the example of the movie Diwar, or even the Vietnam War example, Captain Gerard, and finally Miss Hulda Crooks, So all these examples put together, they bring home the importance of the mindset as well as the choices we make. So I reiterate the same point. I have great hopes and great faith in you all. You all are the bosses or the masters of your own mind. So choose the growth mindset, make good choices so that you can achieve glory. So with these words, I like to thank Dr. Ashish for sparing his time and speaking to you guys and motivating you. Well, today was, by the way, the last motivational talk during this motivational, orientation sessions that we have been having for over a month now. So we are at a stage in the orientation where you would be consolidating your learning now. जो आपकी activities भी आप कर रहे हैं Fridays को, coming Friday will be the audition. तो आप जिस भी एक्टिविटी में हैं, जो भी आपने सीखा है, उसके जो भी आउटपुट्स हैं उनको कंसोलिडेट करिए, क्योंकि फ्राइडे को ऑडिशंस होंगे. आपके जो फैसिलिटेटर्स हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा काम उनको करके दिखाएं, अच्छे से अच्छा आउटपुट दें, परफॉर्म करें, ताकि वो आप सबको मौका दे सकें, जो सभी को अप्रिशिएट हम करें, और जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको नॉमिनेट करके जो 9 नवंबर को फिनाले होगा उसमें आपको उसमें परफॉर्मेंस का मौका दिया जाएगा. So coming week is extremely important for us. You will be hearing also important announcements regarding the beginning of subject classes, right? So keep logging in and keep participating and be good participants. With that, I wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so very much. So we can wind up the session now, Mr. Mohit. Yes, sir, we can wind up. Yeah. Okay. Thank you all. Everyone, yes, Thank you. everyone is requested to please stay connected. 6th of November को आपको audition होगा, जैसा मैम ने कहा, and we have a finale on 9th of November. So all the best. Thank you very much.